اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ رومیوں کے لیے وہ فیصلہ کن لمحہ آ گیا تھا جس کا حکم ماہان نے گزشتہ رات اپنے سالاروں کو دیا تھا۔ ماہان کا حکم پہنچتے ہی رومیوں نے 3 سالاروں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اور اکرمہ رضی اللہ عنہ کے دستوں پر حملہ کر دیا۔ ابو عبیدہ اور شرحبیل رضی اللہ عنہ کے دستوں پر زیادہ دباؤ ڈالا گیا کیونکہ ان کے قدم پہلے ہی اکھڑے ہوئے تھے، وہ پیچھے ہٹ رہے تھے۔ انہیں میدانی جنگ سے بھگا دینا رومیوں کے لیے کوئی مشکل نہ تھا، وہ پیچھے ہٹتے جا رہے تھے۔ رومی جنگ کو فیصلہ کن مرحلے میں لے آئے تھے۔ مسلمانوں کی شکست یقینی تھی اور اس شکست کے نتائج صرف ان مسلمانوں کے لیے ہی تباہ کن نہیں تھے جو لڑ رہے تھے، بلکہ اسلام کے لیے بھی کاری ضرب تھی۔ اسی میدان میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ اس خطے میں مسلمان رہیں گے یا رومی، اسلام رہے گا یا عیسائیت۔ میدان عیسائیت کے ہاتھ تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور یزید رضی اللہ عنہ کے دستوں کے بائیں پہلو پر اکرمہ رضی اللہ عنہ کے دستے تھے، ان پر بھی حملہ ہوا تھا، لیکن یہ اتنا زوردار نہیں تھا جتنا دوسرے دستوں پر تھا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور یزید رضی اللہ عنہ جیسے بہادر سالار کو پسپائی کی حالت میں دیکھا تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے اپنے دستے بھی نہیں ٹھہر سکیں گے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے نعرہ لگایا، خدا کی قسم ہم یوں نہیں بھاگیں گے، اور اپنے دستوں میں گھوم پھر کر کہا، جو لڑ کر مرنے اور پیچھے نہ ہٹنے کی قسم کھانے کو تیار ہے الگ ہو جائے۔ سوچ کر قسم کھانا، قسم توڑنے کے عذاب کو سوچ لو، فیصلہ کرو تمہیں کیا منظور ہے، شکست یا موت، ذلت اور رسوائی کی زندگی یا باعزت موت۔ اگر صورتحال یہ نہ ہوتی اور مسلمان تازہ دم ہوتے تو اکرمہ رضی اللہ عنہ کے اس اعلان کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن مسلمان جسمانی طور پر جس بری حالت کو پہنچ گئے تھے اس کا بہت برا اثر ذہنوں پر بھی پڑا تھا۔ یہ دستے پہلی جنگ تو نہیں لڑ رہے تھے، وہ 3-4 برسوں سے گھروں سے نکلے ہوئے تھے اور لڑتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے۔ یہ جذبہ تھا جو انہیں یہاں تک لے آیا تھا، ورنہ عام ذہنی حالت میں یہ ممکن نہیں تھا۔ اس جسمانی اور ذہنی کیفیت میں اکرمہ رضی اللہ عنہ کے اعلان اور للکار پر صرف 400 مجاہدین نے لبیک کہا اور حلف اٹھایا کہ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے، لڑتے ہوئے جانیں دے دیں گے۔ باقی جو تھے وہ لڑنے سے منہ نہیں موڑ رہے تھے، لیکن وہ ایسی قسم نہیں کھانا چاہتے تھے جسے وہ پورا نہ کر سکیں۔ ان 400 مجاہدین نے جنہوں نے حلف اٹھایا تھا اپنے سالار اکرمہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ان رومیوں پر حلہ بول دیا جو ابو عبیدہ اور یزید رضی اللہ عنہ کو پیچھے دھکیل رہے تھے۔ یہ حلہ اتنا شدید تھا کہ جیسے شیر شکار پر جھپٹ رہے ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ رہا کہ رومیوں کا جانی نقصان بے شمار ہوا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ کے دستوں میں سے کوئی ایک آدمی بھی پسپا نہ ہوا، لیکن 400 جانبازوں میں سے ایک بھی صحیح و سلامت نہ رہا۔ زیادہ تر شہید ہو گئے اور باقی شدید زخمی، اور بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہوتے رہے۔ کئی ایک جسمانی طور پر معذور ہو گئے۔ انتہائی شدید زخمی ہونے والوں میں اکرمہ رضی اللہ عنہ بھی تھے اور ان کے نوجوان بیٹے عمر بھی، یعنی ابو جہل کا بیٹا اور پوتا۔ سبحان اللہ، اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کرے۔ انہیں بے ہوشی کی حالت میں پیچھے لایا گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور یزید رضی اللہ عنہ کے دستے پیچھے ہٹتے گئے، رومی انہیں دھکیلتے چلے آ رہے تھے۔ بڑا ہی خوریز مارکا تھا۔ جب یہ دستے مسلمانوں کی خیمہ گاہ تک پہنچے تھے تو مسلمان عورتوں نے ڈنڈے پھینک کر تلواریں اور برچھیاں اٹھا لی اور چادریں پگڑی کی طرح اپنے سروں سے لپیٹ کر رومیوں پر ٹوٹ پڑی۔ ان میں زرار کی بہن خولا بھی تھی جو عورتوں کو للکار رہی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عورتیں اپنے دستوں سے گزرتی آگے نکل گئیں اور بڑی مہارت، دلیری اور قہر سے رومیوں پر جھپٹنے لگیں۔ وہ تازہ دم تھی، انہوں نے رومیوں کے منہ توڑ دیے، ان کی ضربیں کاری تھی۔ رومی زخمی ہو کر گرنے لگے۔ عورتوں کے یوں آگے آ جانے اور رومیوں پر جھپٹ پڑنے کا جو اثر مجاہدین پر ہوا وہ غضبناک تھا۔ اپنی عورتوں کو لڑتا دیکھ کر مجاہدین آگ بگولا ہو گئے۔ انسان میں جو مخفی قوتیں ہوتی ہیں وہ بیدار ہو گئیں، اور وہی مجاہدین جو پسپا ہوئے جا رہے تھے رومیوں کے لیے قہر بن گئے۔ انہوں نے ترتیب توڑ دی اور اپنے سالاروں کے احکام سے آزاد ہو کر ذاتی لڑائی شروع کر دی۔ ان کی ضربوں کے آگے رومی بوکھلا گئے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ وہ اپنے زخمیوں کو روندتے جا رہے تھے۔ سالار بھی سپاہی بن گئے اور عورتیں بدستور لڑتی رہیں۔ دن کا پچھلا پہر تھا۔ مارکا انتہائی خونریز اور تیز ہو گیا۔ رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے۔ گھمسان کے اس مارکے میں زرار کی بہن خولا جو اس وقت تک کئی ایک زخمیوں کو زخمی اور ہلاک کر چکی تھی، ایک اور رومی کے سامنے ہوئی۔
पहला वार खौला ने किया जो रूमी ने रोक लिया और उसके साथ ही उसने ऐसा जोरदार वार किया कि उसकी तलवार ने खौला के सर का कपड़ा भी काट दिया और सर पर शदीद जख्म आए। खौला बेहोश होकर गिर पड़ी, फिर उन्हें उठता न देखा गया। उसके बाद सूरज गुरूब हो गया और दोनों तरफ के दस्ते अपने अपने मकाम पर पीछे चले गए और जख्मियों और लाशों को उठाने का काम शुरू हो गया। रूमियों की लाशों और बेहोश जख्मियों का कोई शुमार न था। नुकसान मुसलमानों का भी कम न था, लेकिन रूमियों की निस्बत बहुत कम था। खौला कहीं नजर नहीं आ रही थी। उन्हें खैमागाह में ढूंढा गया, न मिली तो लाशों और जख्मियों में ढूंढने लगे और वो बेहोश पड़ी हुई मिल गईं। सर में तलवार का लंबा जख्म था, बाल खून से जुड़ गए थे। किसी ने कहा इसके भाई को इत्तला दो, इब्ने अल अजवर से कहो तेरी बहन शहीद हो रही है। ज़रार बिन अल अजवर बहुत दूर थे, बड़ी मुश्किल से मिले। बहन की इत्तला पर सरपट घोड़ा दौड़ाते आए। जब अपनी बहन के पास पहुंचे तो बहन होश में आ गई। उनकी नजर अपने भाई पर पड़ी तो होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। ज़रार ने जज्बात से मखलूब आवाज में कहा, खुदा की कसम तू जिंदा है, तू जिंदा रहेगी। ज़रार ने खौला को उठाकर गले से लगा लिया। खौला के सर पर तह दर तह कपड़ा था जिसने तलवार की ज़रब को कमजोर कर दिया था। सर पर सिर्फ ओढ़नी होती तो खोपड़ी कट जाती, फिर जिंदा रहना मुमकिन न था। जंग का बड़ा हौलनाक दिन गुजर गया। रूमियों को अपने इस अज़्म में बहुत बुरी तरह नाकामी हुई कि आज के दिन जंग का फैसला कर देंगे। उनकी नफरी तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन उस रोज उनकी जो नफरी मारी गई थी उससे उनका ये फख्र टूट गया था कि वो मुसलमानों को हमेशा के लिए कुचल डालेंगे। मुसलमानों ने जिस तरह अपने सालारों से आजाद होकर उन पर हल्ले बोले थे, उससे वो मोहतात हो गए थे। रूमियों के लश्कर में जो सबसे ज्यादा मारे गए या शदीद जख्मी हुए वो ईसाई और आर्मीनी और दूसरे कबाइल के आदमी थे जो रूमियों के इत्तेहादी बनकर आए थे। रूमी सालार आला माहान ने उन्हीं को आगे कर दिया और बार बार उन्हीं से हमले करवा रहा था। उन लोगों का जज्बा अपनी इतनी ज्यादा लाशें और जख्मी देखकर मजरू हो गया था। उस रोज एक और वाकया हो गया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु परेशानी के आलम में कुछ ढूंढते फिर रहे थे। जंग के मुतालिक तो उनके चेहरे पर इस्तराब और हिजान रहता था, लेकिन ऐसी परेशानी उनके चेहरे पर शायद ही कभी देखने में आई हो। उनसे परेशानी का बायस पूछा गया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मेरी टोपी, सुर्ख टोपी मेरी कहीं गिर पड़ी है। तलाशे बसियार के बाद उनकी सुर्ख टोपी मिल गई। मौरख लिखते हैं कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर रौनक और होंठों पर तबस्सुम आ गया। किसी सालार ने पूछा, इब्ने वलीद, क्या तुझे उनका गम नहीं जो हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गए हैं? तू एक टोपी के लिए इतना परेशान हो गया था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, इस टोपी की कदर कीमत सिर्फ मैं जानता हूँ। हज्जतुल विदा के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर के बाल मुंडवाए तो मैंने कुछ बाल उठा लिए। रसूलुल्लाह ने पूछा कि इन बालों को क्या करोगे? मैंने कहा कि अपने पास रखूंगा। कुफार के खिलाफ लड़ते वक्त ये बाल मेरा हौसला मजबूत रखेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया कि ये बाल तेरे पास रहेंगे और मेरी दुआएं भी तेरे साथ रहेंगी। अल्लाह तुझे हर मैदान में फतह अता करेगा। मैंने ये बाल अपनी इस टोपी में सी लिए थे। मैं इस टोपी से जुदा नहीं हो सकता। इसी की बरकत से मेरी ताकत और हिम्मत कायम है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को टोपी मिल जाने की तो बहुत खुशी हुई थी, लेकिन वो रात उनके लिए शबे गम थी। वो एक जगह बैठे हुए थे। उनके एक जानू पर सालार इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु का सर था और दूसरी जानू पर इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु के नौजवान बेटे अमर का सर रखा था। बाप बेटा उस रोज की लड़ाई में इतने ज्यादा जख्मी हो गए थे कि होश में नहीं आ रहे थे। जिस्मों से खून निकल गया था। जख्म ऐसे थे कि उनकी मरहम पट्टी नहीं हो सकती थी। उस रोज बाप बेटा कसम खाकर लड़े थे कि मर जाएंगे मगर पीछे नहीं हटेंगे। इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के भतीजे भी थे और दोस्त भी। उनका बड़ा पुराना साथ था। दोनों माने हुए शहसवार और शमशीर जन थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने इतने अजीज साथी के बिछड़ जाने का बहुत दुख था। इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु का नौजवान बेटा भी दुनिया से रुखसत हो रहा था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पानी अपने साथ रखा हुआ था। वो पानी में अपना हाथ डुबोते और उंगलियां जोड़कर कभी इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु के नीमवा होंठों पर रखते, कभी उनके बेटे अमर के होंठों पर। मगर कतरा कतरा पानी जो बाप बेटे के मुंह में जा रहा था वो आबे हयात नहीं था। अल्लाह ने उस अजीम बाप और उसके बेटे को फराइज से सुबकदोश कर दिया। इस तरह इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने और उसके फौरन बाद उनके बेटे ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की गोद में सर रखे जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के आंसू निकल आए। उन्होंने कहा, क्या इब्ने हंतमा अब भी कहता है कि बनी मखजूम ने जाने कुर्बान नहीं की? हंतमा खलीफातुल मुस्लिमीन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा का नाम था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु बनी मखजूम में से थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को गालिबन वहम था कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि बनी मखजूम की इस्लाम के लिए जानी कुर्बानियां थोड़ी हैं। इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके बेटे की शहादत मामूली कुर्बानी नहीं थी। वो रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी, जैसे लम्हे डर डर कर कांप कांप कर गुजर
पुकार रही हो। जख्मियों के कराहने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कई शहीदों की बीवियां वहीं थीं, लेकिन किसी औरत के रोने की आवाज नहीं आती थी। फजा खून की बू से बोझल थी। दिन को उड़ी हुई गर्द जमीन पर वापस आ रही थी। शहीदों का जनाजा पढ़कर उन्हें दफन किया जा रहा था। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये इंतजाम कर रखा था कि रात को किसी एक सालार को मुकर्रर करते थे कि वो तमाम खैमागाह के इर्द गिर्द घूम फिर कर पहरेदारों को देखे, फिर मुजाहिदीन को जाकर देखे जिन्हें दुश्मन की खैमागाह पर नजर रखने के लिए आगे भेजा जाता था। उस रात अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस ख्याल से किसी सालार को इस काम के लिए न कहा कि सब दिन भर के थके हुए हैं। वो खुद इस काम के लिए चल पड़े, लेकिन वो जिधर भी गए उन्हें कोई न कोई सालार गश्त पर नजर आया। सालार जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु तो अपनी बीवी को साथ लेकर गश्त पर निकले हुए थे। दोनों घोड़ों पर सवार थे। उनकी बीवी भी दिन को लड़ी थी। ये रात भी गुजर गई। जंग यरमुक की 5वीं सुबह तुलू हुई। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फजर की नमाज से फारिग होते ही सालारों को बुला लिया था। उन्होंने कहा, मेरे रफीको, आज का दिन कल से ज्यादा खतरनाक होगा। अपनी तादाद देख लो, हम थोड़े रह गए हैं और जो रह गए हैं उनकी हालत भी तुम्हारे सामने है। आज जख्मी भी लड़ेंगे। दुश्मन का भी बहुत नुकसान हो चुका है, लेकिन उसकी तादाद इतनी ज्यादा है कि वो इतने ज्यादा नुकसान को बर्दाश्त कर सकता है। तुमने दुश्मन के लड़ने का अंदाज देख लिया है। सिर्फ ये ख्याल रखो कि मरकजियत कायम रहे। अब हम जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सालारों को कुछ हिदायत दी और रुखसत कर दिया। बाद मुसलमान दस्ते अपनी पोजीशनों पर चले गए। उनकी कैफियत ये थी कि हर दस्ते में जिस्मानी लिहाज से जितने बिल्कुल ठीक अफराद थे, उतने ही जख्मी भी थे। जख्मियों में ज्यादातर ऐसे थे जो किसी हद तक लड़ने के काबिल थे, लेकिन ऐसे भी थे जो लड़ने के काबिल नहीं थे, मगर वो अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। औरतें आज भी लड़ने के लिए तैयार थीं। मुसलमानों की ये दिगरगू कैफियत दुश्मन से छुपी हुई नहीं थी। उसने उसका पूरा फायदा उठाना चाहा। मुसलमान सालार रूमियों के महाज की तरफ देख रहे थे। मुसलमान सालारों को ये खतरा भी नजर आ रहा था कि रूमी अपने सारे लश्कर से हमला कर देंगे। सुबह सफेद हो चुकी थी, लेकिन रूमी आगे न आए। फिर सूरज निकल आया, लेकिन रूमी आगे न आए। रूमियों का ये सुकूत खतरनाक लगता था। ये तूफान से पहले की खामोशी मालूम होती थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को ख्याल गुजरा कि रूमी मुसलमानों को हमले में पहल करने का मौका दे रहे हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु पहल नहीं करना चाहते थे। वो कुछ वक्त और दिफा को ही बेहतर समझते थे। आखिर रूमियों की तरफ से एक सवार आता दिखाई दिया। रूमियों के लश्कर ने कोई हरकत न की। सवार मुसलमान दस्तों के सामने आकर रुक गया। वो कोई ईसाई अरब था। अरबी रवानी से बोलता था। उसने ऐलान करने के अंदाज से कहा, मैं अपने सालार आला माहान का इल्ची हूँ। तुम्हारे सालार आला से मिलने आया हूँ। सालार आला अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु थे। ये तो उन्होंने अपने तौर पर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को सालार आला के इख्तियारात दे रखे थे। जिम्मेदारी बहरहाल अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु की ही थी और अहम फैसले उन्होंने ही करने थे। वो आगे चले गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ से जरा दूर थे। उनके कान खड़े हुए और वो उनकी तरफ चल पड़े। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, कहो रोम के एलची, क्या पैगाम लाए हो? एलची ने कहा, सालार आला माहान ने कहा है कि चंद दिनों के लिए लड़ाई रोक दी जाए। क्या आप रजामंद होंगे? अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, लेकिन तुम्हारे सालार आला ने कोई वजह नहीं बताई। एलची ने कहा, ये आर्जी सुलह होगी। इस दौरान ये फैसला होगा कि मुस्तकिल सुलह के लिए बातचीत होगी या नहीं। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हम आर्जी सुलह पर रजामंद हो जाएंगे, लेकिन बातचीत का फैसला कौन करेगा? एलची ने कहा, क्या आप लड़ाई रोकने पर राजी हैं? अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हाँ। एक गरजदार आवाज सुनाई दी, नहीं। दोनों ने देखा, ये खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज थी। उन्होंने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु की सिर्फ हाँ सुनी थी। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अबू सुलेमान, इनके सालार ने आर्जी सुलह के लिए कहा है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के कान में कहा, अमीनुल उम्मत, ये हमले की तैयारी के लिए मोहलत चाहते हैं। इनका इतना नुकसान हो चुका है कि फौरी तौर पर हमला नहीं करना चाहते। मुझे इजाजत दे कि इस एलची को कोरा जवाब दे सकूं। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एलची से कहा, ऐ सल्तनत रोम के एलची, सुलह समझौते का वक्त गुजर गया है। अपने इतने ज्यादा आदमी मरवा कर मैं ये नहीं कहलवाना चाहता कि मैं अपने इतने ज्यादा मुजाहिदीन का खून जाया करके आया हूँ। लड़ाई जारी रहेगी। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने घोड़ा मोड़ा और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ अपने महाज की तरफ चल पड़े। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अबू सुलेमान, अपने मुजाहिदीन की हालत देखते हुए मैंने सोचा था कि उन्हें आराम मिल जाए और कुछ जख्मी ठीक हो जाएं, तो क्या तू देख नहीं रहा कि? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, सब देख रहा हूँ इब्न अल जर्राह, लेकिन हालत हमारे दुश्मन की भी ठीक नहीं, वरना सुलह का धोखा न देता। रूमियों के साथ बहुत से कबीले थे। रूमी सालारों ने उन्हीं को सबसे पहले मरवाया है और अपनी बाकायदा फौज को वो बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं।
ये कबीले बागी हो गए होंगे या उनका दमखम टूट चुका होगा, हम उन्हें संभलने की मोहलत नहीं देंगे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या तू इन पर हमले की सोच रहा है? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या तू सोचने के काबिल नहीं रहा अमीनुल उम्मत? आ मिलकर सोचें। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो सोचा वो बड़ा ही पुरखतर और दलेराना इक़दाम था। वो दिन जो जंग का 5वां दिन था बगैर लड़ाई के गुजर गया। दस्तों को एक दिन का आराम तो मिल गया था, लेकिन सालारों ने आराम न किया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सालारों को अपने साथ मसरूफ रखा। उन्होंने 8000 घुड़सवार अलग करके एक दस्ता बना लिया। सालारों को अपना नया मंसूबा समझाया। उन्होंने ये मंसूबा जिन प्यादों और सवारों के लिए बनाया था उनमें आधी तादाद जख्मी थी। ऐसा खतरा खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ही मोल ले सकते थे। छठे दिन की सुबह तुलू हुई, रूमी लश्कर आगे आ गया। मुसलमान मैदान में नई तरतीब से मौजूद थे। रूमी सालार ग्रेगरी घोड़े पर सवार आगे बढ़ा। ग्रेगरी उन दस्तों का सालार था जिनके 10-10 सिपाही एक एक जंजीर से बंधे हुए थे। ग्रेगरी ने दोनों फौजों के दरमियान घोड़ा रोका। उसने ललकार कर कहा, क्या तुम्हारे सालार आला में हिम्मत है कि मेरे मुकाबले में आए? अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और ग्रेगरी की तरफ गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को पुकारा, रुक जा इब्न अल जर्राह, और घोड़ा दौड़ाकर उनके करीब चले गए। कहने लगे, तू आगे नहीं जाएगा, मुझे जाने दे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अबू सुलेमान वो मुझे ललकार रहा है। मुतअद्दिद सालारों ने शोर मचाया, अमीनुल उम्मत को रोक लो, इब्न वलीद को जाने दो। मौरिख लिखते हैं कि ग्रेगरी को मुसलमान सालार माहिर तेगज़न समझते थे। तेगज़नी में अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु भी कम न थे। फिर भी सब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को ग्रेगरी की टक्कर का आदमी समझते थे। लेकिन अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने किसी की न सुनी और ग्रेगरी के मुकाबले में चले गए। ग्रेगरी ने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी तरफ आते देखा तो उसने घोड़े को एड़ लगाई और इस तरह एक तरफ ले गया जैसे वो पहलू की तरफ से आकर तलवार का वार करना चाहता हो। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने घोड़ा रोक लिया और ग्रेगरी को कनखियों से देखते रहे। ग्रेगरी ने अपने ही अंदाज से घोड़ा घुमाया और दौड़ाकर अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु पर वार किया। वार ऐसा था जो लगता था कि रोका न जा सकेगा, लेकिन अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने वार रोककर घोड़े को घुमाया और बड़ी फुर्ती से वार किया। ग्रेगरी ने वार रोक लिया। उसके बाद तलवारें टकराती और घोड़े अपने सवारों के पैंतरों के मुताबिक घूमते, मुड़ते, दौड़ते और रुकते रहे। दोनों सालार शमशीर जनी के उस्ताद मालूम होते थे। दोनों के वार बड़े ही तेज थे और हर वार लगता था कि हरीफ को काट देगा। दोनों फौजें अपने अपने सालार को चिल्ला चिल्ला कर दाद दे रही थीं। कभी दोनों फौजें यूं दम बखुद रह जाती जैसे वहां कोई इंसान मौजूद ही ना हो। ग्रेगरी ने एक वार किया जो अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रोक लिया। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु वार करने लगे तो ग्रेगरी ने घोड़ा दौड़ा दिया और अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के इर्द गिर्द घूमने लगा। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु वार करने बढ़ते तो वो रुक कर वार रोकने की बजाय घोड़े को परे कर लेता। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने वार करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो वार से भाग रहा था। ऐसे नजर आता था जैसे वो मुकाबले से मुंह मोड़ रहा हो। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु उसके पीछे हो गए। आखिर उसने घोड़े का रुख अपने लश्कर की तरफ कर दिया। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु उसके पीछे पीछे और उसका पीछा करते रहे। उसने घोड़े की रफ्तार तेज कर दी। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी रफ्तार बढ़ा दी। रूमी लश्कर पर तो खामोशी तारी हो गई, लेकिन मुसलमानों ने दादो तहसीन का शोर बर्पा कर दिया। रूमी सालार मुकाबले से मुंह मोड़ कर भाग गया था। ग्रेगरी ने घोड़े को एक तरफ मोड़ा और रफ्तार तेज कर दी। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने घोड़े को एड़ लगाई और उसके करीब चले गए। ग्रेगरी ने घोड़ा घुमाकर अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने कर दिया। ये उसकी चाल थी। वो भाग निकलने का धोखा दे रहा था। धोखा ये था कि वो अचानक घूमकर अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु पर वार करेगा और उन्हें वार रोकने की मोहलत नहीं मिलेगी। मौरिख तबरी और बिलाजरी ने लिखा है कि अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु चौकन्ने थे और ग्रेगरी के धोखे को समझ गए थे। ग्रेगरी फौरन घोड़ा पीछे को मोड़कर वार करने लगा तो अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु की तलवार पहले ही हरकत में आ चुकी थी। ग्रेगरी की गर्दन मौजू जाविये पर थी। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु का वार सीधा गर्दन पर पड़ा, जिससे गर्दन की हड्डियों का एक जोड़ कट गया और गर्दन एक तरफ ढलक गई। ग्रेगरी घोड़े से गिर पड़ा। मुसलमानों ने दादो तहसीन का गुल गपाड़ा बपा कर दिया। दस्तूर के मुताबिक अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को घोड़े से उतरकर ग्रेगरी की तलवार, खाद और ज़र्रा उतार लेनी चाहिए थी, लेकिन वो घोड़े से न उतरे। कुछ देर ग्रेगरी को तड़पता देखते रहे। जब उसका जिस्म बेहिस हो गया तो अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने घोड़े को एड़ लगाई और अपनी सफों में आ गए। इब्ने वलीद अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को खिराज तहसीन पेश करने के लिए न रुके। वो घुड़सवार दस्ते के पास चले गए जो उन्होंने उस रोज की जंग के लिए तैयार किया था। 8000 सवारों के
उस दस्ते को दाएं पहलू पर अमर बिन अलास के दस्तों के अकब में ऐसी जगह खड़ा किया गया था जहां से ये दुश्मन को नजर नहीं आ सकता था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी तमाम फौज को सामने का हमला करने का हुक्म दे दिया। रूमी सालार हैरान हो गए थे कि मुसलमान सालारों का दिमाग जवाब देगा है कि उन्होंने एक ही बार सारी फौज हमले में झोंक दी है।